Okay, so today we'll go with UCC, Uniform Civil Code. So are you aware of this term, Uniform Civil Code, Yes, ma'am. or should I explain you? मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। Okay, so Uniform Civil Code, uniform is what? Same चीजें, civil leading to our civil lives, जो जितने भी personal laws होते हैं related to marriage, adoption, inheritance, succession of property and maintenance, right? So these are the personal laws. So in India we have personal laws of Hindu, वो अलग हैं, Muslim के personal law they are governed by the Shariat Act, Christians के अलग हैं, राइट? तो वी हैव कैटेगराइजेशन इन दिस कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। हिंदू में जो मेथड होता है मैरिज का, डाइवोर्स का, अडॉप्शन का, एंड जैसे सपोज वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, राइट? बट मुस्लिम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पर्सनल लॉज होते हैं ये इन्हीं को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे हैं। तो जीडी का डिस्कशन का टॉपिक क्या है कि शुड यूसीसी बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और नॉट, because this has been in news but throughout like past 2 months, because PM had I think he gave some statement कि we will implement the UCC. So उसके बाद से the debates and discussions were going on कि should it be implemented or not, कि क्या challenges we are going to face अगर UCC implement होता है and क्या उसके pros होंगे। सपोज अगर सेम पर्सनल लॉज सभी फॉलो करने लग जाएं, सेम मैरिज के लॉज होंगे, सेम अडॉप्शन के लॉज होंगे, सेम डाइवोर्स के लॉज होंगे हर एक रिलीजन में, तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूसीसी। ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी कि शुड यूसीसी बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और नॉट। So on this you have to discuss. You can discuss about initially कि what is UCC, UCC होता क्या है, plus I am giving you an additional hint कि it is also mentioned in our constitution but not in the fundamental section part. Okay, it is one of the directive principles to the state policy, means कि it is a direction to the government. Okay, so in that particular section this concept of UCC is mentioned in our Indian constitution. Okay, first point is this. Then you can talk about ki what are the challenges associated if UCC is implemented. Okay, then you can talk about ki what benefit the Indian community will get as a whole if UCC is implemented. Okay, so you can talk about all the entire things. Okay, so who will go with the introduction? Okay, ma'am. Rahul will go. Good. At least you have initiated. You have started to say कि I'll start. Okay. Conclusion कौन करेगा? बोलो Ma'am, बोलो. I will do conclusion. Okay, Bhanu will conclude. Okay, Ravi, I'll explain you quickly the process कि क्या होता है. Basically, a person will start with the introduction. So he'll say कि good evening friends, my name is so and today the topic for discussion is, let's say कि should UCC be implemented in India or not. Okay, then the person will define कि what is UCC, or he will give a brief introduction of UCC. Then he will open the house for discussion, and then you have to start discussing on that points. Okay, so whatever I have told you, the challenges you can discuss, the benefits you can discuss, what impact it will create on the society, so all these points you need to discuss in the discussion. Okay, important points to note again कि you should have great listening skills as well as communication skills में language is not a barrier actually. आप अगर हिंदी में comfortable हो, इंग्लिश में comfortable हो, or you can use a mix of both. Okay, language इतना important नहीं है. Your confidence, your personality will be checked because you have passed an exam. आप एक exam pass करके आए हो, that means you are credible enough. So they are going to test your confidence level, your overall personality, and how are you communicating your points, right? कि कितना effective communication है आपका. Your points should be precise and they should be like straightforward. बहुत ज़्यादा you need not stretch your points, long points नहीं होनी चाहिए. Try to keep them short and simple. Okay, then whosoever the person is speaking, try to maintain eye contact with that person, and if anyone is diverting from the topic, please bring the person back to the topic, right? So be attentive, which involves your listening skills. Okay, so these are the points you need to remember. Plus, never ever criticize anyone or any community or anything.
You need not criticize or say negative, extreme negative points. Do not pinpoint anyone basically. Suppose you give an extreme statement कि मतलब हिंदूज तो होते ही ऐसे हैं, मुस्लिम तो होते ही ऐसे हैं, मतलब ऐसा स्पेसिफिक कोई पिन पॉइंट स्टेटमेंट नहीं देना है, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए. ओके, पॉइंट्स दे सकते हो और फैक्ट्स अगर पता है, करेक्ट फैक्ट्स हैं तो ही फैक्ट्स पे बात करना. Lastly, talking about conclusion, you can give some way forward solution. Ki what can government do? What steps can be taken? Your conclusion should be in a balanced way. Okay, so these are the points in GD. Okay, so it is 9:14 now. You have 2 minutes. By 9:16 we will start the discussion. Okay, for 15 minutes or so. Okay, chalo, note down the points. Okay, Rahul, you can start with the introduction. Okay. Good evening to all. My name is Rahul Rajanan, and I am glad to start the discussion. The topic given to us for the today's group discussion is UCC. First of all, we have to understand the meaning of UCC. UCC stands for Uniform Civil Code. Recently in India, there is a lot of intense debate occurring across all the political parties. All have different opinion on it. I think in India, it is a diverse country with multiple reasons, and all have their own laws of marriage, personal laws, and various other things. But if the UCC is applicable to all these communities, this becomes same whether it is marriage, divorce, adoption, etc. It has several advantages and disadvantages too. We are going to discuss one by one. Now I invite all of us to participate in the discussion. Yes, I agree with your point, Rahul. So I would like to point out some of the advantages of implementing uniform civil code. Am I audible? Yes. Okay. So good evening, everyone. So I would like to point out some of the advantages of implementing uniform civil code. So, as pointed out by Rahul, uniform civil code means the same law, same personal law is applicable to all the citizens of our country. So be it the law of marriage or law of inheritance or succession rights or the property laws, all these things are aimed to be brought under a same umbrella. So as you can see that there has been a lot of differences in the personal laws in India. With the Hindu, for example, like the Hindu Marriage Act 1955 gives the maintenance rights
to the women. But the same thing is not applicable in the Muslim marriage. And also, the inheritance laws are also different. So, some of the laws are actually against some section of the society, section of people, especially women. For example, the some of the sections in the Muslim marriage law are actually against women. And also in the Christian Succession Act also, um, earlier the women were not allowed to have inherit property, ancestral property. It took Mary Roy. You might know the Mary Roy is actually the it's a family member. She's the grandmother of the Arundhati Roy. She actually fought in the court, and she actually brought the change that the Christian women were eligible for getting the property rights. So suppose if the same law is being implemented to all the sections of the society, I think it will be beneficial to society as a whole. Yes, I agree with your points, Anand, that if this law is implemented, that is easy for the courts and judges also for to identify the equally laws for others. And also, there is a problem with different laws into different religions, that there's not equality in there, and they are also not treat women and other genders in equal like that. So this is a problem which can be solved with UCC. One of the things that we can all agree is the countries which practice these kind of laws are mostly based in those countries. The laws are mostly based on the majority of the population, like Egypt and Malaysia, and we can say in Pakistan also. Most of the laws are go in hand with the religious values of those people. So I think one of the problem that can occur is autonomy of one kind of people or one kind of cultural values that can happen during that while practicing this. Other than that, yes, I agree that in some cases it can help in removing discrimination and application of the equality, but it only depends on the how you are practicing it. Like, and if we like in our country, you are not allowed to have more than 3 marriages. But in Pakistan, UCC is applied, I think, there, and they allow these kind of things. Also, the rights for the women is not that much. So I think that is one of the challenge while practicing this. I am agree with all of your points, but I want to add one point, because India is a secular country. So इंडिया ये सेकुलर कंट्री, तो यहाँ पे सभी मतलब धर्मों को एक समान माना गया है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ वहाँ पे उसके अनुसार से वहाँ वहाँ के नियम कानून बनते हैं। बट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो यहाँ पे सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कोई कानून मतलब बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में भी जैसे गोवा में पहले से ही लागू है। और ओके, Yes, Ravi. Like you have pointed out, India is a secular country, and Yes. also India is a country that gives importance to the unity and diversity also. So Yes. there will be diverse culture, and among that diversity, we are going for that unity. That is the beauty of our country. So there will be a lot of challenges while implementing the same kind of law being applicable to all the citizens of India. Like Pranay has already rightly pointed out, some section of the people may feel that they are underprivileged and they are getting utilized, and their culture is not being correctly being recognized in front of the constitution. And as we know that this uniform civil code was already included in the constitution of India, but it was not included as a fundamental right. It was included in the directive principles of state policies. That means that these are the directions that were given to the state government or the government to be implemented in future. But as we can see that this debate, when the Prime Minister has put forward this statement, this caused a huge rift among the people of India. And also because this has got a lot of dimensions also, be it political, social, cultural, all the aspects also we need to think also.
Yes, I agree Yes, I with you agree Definitely. with that, but I I want to add it. The country like India, which is rich in diversities across the state, it is not easily applicable. Implementation is not easy for the government because they, you can impose uniform set of laws in personal issues like marriage due to various diversity across the states, caste. बट दिस इज Yeah. पॉसिबल इन गोवा, बिकॉज इन गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अलॉटेड, पहले से ही मतलब लागू है गोवा में, तो ऐसा नहीं कि yes मतलब नहीं किया जा But सकता है। I और yes think अगर in by हम the India by as the a whole, it is not as easy for as implementation. Ravi has said, it has already implemented in Goa. So one of the thing that I would like to mention that it is, as Rahul is saying, it is difficult to implement it. But once it is implemented, it is very easy to maintain, and the people, at the personal perspective, that I think it will encourage the cohesion in the public, and like shared and common values in so I think it will be helpful in creating peace around in the Yeah. state and the country if implemented. Yeah, apart from that, there's some challenges like there's a disagreement into the thoughts of people. Some there is not of unity. Also, the tribe people think that their culture is destroyed by this uniform civil code because they are professionally feeling or adopting different rules or regulation in their situation. So by that, they was thinking that there's completely destroyed their culture, and also. It can replace it can be harmful, it can be hurt people religious sentiment also sometimes, because they think that if there is a religious and they need to have follow that particular things, but that can be hard for them also. अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे जो हमारा जो कल्चर है वो अगर मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड करने से, लागू करने से अगर वो मतलब खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पुराने समय में हमारे यहाँ पे सती प्रथा भी लागू लागू होती थी, मतलब बाल विवाह ये सब टाइप का मतलब पहले कुछ होता था। तो अगर हमारे समाज को मतलब आगे बढ़ना है तो इन सब कुछ प्रथा मतलब कुछ अगर कल्चर को भी अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आने वाले समय में हमारे लिए मतलब कुछ अच्छा हो जाए तो। But if you see, as per the constitution, it is directly mentioned that right to freedom of religion of one's Yeah. choice. So after the implementation, I think the right of freedom to religions will be reduced. Yeah. Yeah, but I think that if we see in the religious point of view, all the things in the religion is not up to the terms of equality for all the people. So I think taking that perspective, if we apply the uniform civil code, it will be beneficial for certain group of people like women and the people from different genders, I think. Also the minorities, the religious minorities, that will also be helpful. Yes, if it is implemented properly, like you said, it will be greatly beneficial to the women and also to the other underprivileged sections of the society. And also, like we have already discussed about the challenges also. These are really great challenges that needs to be addressed. And how the first thing is, I think it should be to make the people in to put them into faith, that they should have the proper faith also. The government, before it is getting before they are implementing the law, they should see that the major section of the people are actually favoring this thing, and the Yes. trust also, they should also build the trust among the people also. Because sudden change, everybody will be opposing, everybody Yes. will be opposing, and also there will be a lot of fear what will happen, will like Rahul has said, that whether the freedom of a religion will be affected or not, all these kind of at the same time we should always see that the core of our constitution is not changing, that our we are still a democratic state that is of the people, for the people, and by the people. And at the same time, we are also a secular state, which gives the freedom of religion to everyone. Actually, we were the only country um, which had actually welcomed the Jews. Jews did not face any kind of persecution in India. It's the only country. I can say that. So that is our culture, that is our history, that is our ancient history and our heritage. So our laws also should be implemented in coherence with our culture and our heritage.
that means Bahujan, that is our Vasudhaiva Kudumbagam. That means our family as a whole, the whole world is our own family. Like that's our concept. So if the core is that is kind of if it's not lost, no, and the law is being implemented in that way, I feel that there is nothing much to be worried about. Yes, I am agree with you. We discuss some benefits of if uniform civil code is allowed. So first of the benefit is that all people सब मतलब सारे लोग अगर एक समान हो जाए तो बहुत ऐसे आजकल मतलब क्या होता है कि शादी करने में भी मतलब अपने कोई अगर हिंदू ही है तो हिंदू में भी दूसरे वर्ग में अगर वो शादी करना चाहता है तो मतलब बहुत मुश्किल से शादी होता है। मगर अगर ये यूसीसी अगर मतलब कानून लागू हो जाता है तो एक तो पहले मतलब इससे छुटकारा लोगों को मिल जाएगा कि हाँ मतलब आसानी से शादियां की जा सकती है। और केवल हिंदू धर्म ही नहीं मतलब बाकी और भी धर्मों में भी ऐसे शादियां हो जाएगी फिर एक तो ये हो जाएगा। और अधिकार मिलेगा। I Yes, I think agree with one you. of the Yes, I agree reason with the that point I agree with you all, uh, that but at the same time, I think the time when the most of the our minority community of India are opposing this uniform civil code and develop. is, see, We I yeah, should I think agree with your I consider point, think we but see should that see procedure to if check you out want to I develop think we the should. country completely, then yes. you have to treat everyone equally. Then you can develop the country in that manner. Yes, Also, if I the people are following their different laws and regulation, then that country itself is disengaged to solving their issues itself. So how can they develop from yes, that point? I think we should look after the sentiments which our Prime Minister was thinking about while taking this topic into consideration. It is because of the positive aspects of this Uniform Civil Code, like as we all discussed that the equality and justice is one of the point, and the shared values is one of the point, and other points. So I think we can say that the strict application of this Uniform Civil Code is very difficult. So other than this, we can what our government can do is apply partial uniform civil code. Like in some points, we can apply the same laws for each person, irrespective of their faith, and other points we give them the personal rights. So it will be less chaotic to apply, I think. Yeah, the government The need to modify their rules before implementing them. yes. Also we should see that we should everybody should be careful also in such a what I'm trying to say is that this statement has come in the context of the 2024 election also. So this thing should not be taken as a tool to earn more votes among the majority section, or should not be used as a tool in the vote bank politics. But at the same time, we should recognize that there are still a lot of problems in existing in a society in terms of this marriage, especially the legal matters of marriage, adoption, succession, inheritance, and all these things. So these things need to be addressed properly, and subsequent changes should be given. Just like Mr. Singh has said, our country can prosper only when there is a true sense of equality among the people. And if Yes, but we think that there is I think election, before the then implementation of UCC, authorities also win the trust of their communities. If they don't Yeah, trust the community, if the minorities are not feeling safe, but it destroy the harmony of the nation. एंड इफ अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये चुनाव का मतलब चुनाव मुद्दा के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो ऐसा नहीं इंडिया में हमेशा किसी न किसी टाइम पे किसी स्टेट का या चुनाव तो होता ही रहता है। तो ऐसा मतलब हम नहीं समझ सकते कि चुनावी मुद्दा होना चाहिए। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को
most of the people are seeing it as a political tool. That is what you are trying to नो say. नो, ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल टूल है। अगर ये Yes, अगर ये लागू हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा ही कमियां हो जाएगी, मतलब ये और अच्छा ही होगा, और भी लोगों के लिए, जितने भी कम्युनिटी है सारे के लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि yes, अगर yes, अगर एक बात मैं बोलूँ, ये लोग तो 300 ट्रिपल तलाक को भी अगर विरोध कर रहे थे तो फिर तो वो तो मतलब वो तो और भी गलत था, अगर वो जो लोग उसको विरोध कर रहे थे तो। मतलब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हर कोई इसको अडॉप्ट करे, तो आपको ये करना होगा कि हर सब किसी को ये आइडेंटिफाई करवाना होगा कि आपकी रिलीजियस में जो चीजें हैं उनको हम लोग हैम्पर नहीं कर रहे हैं, पर हाँ आपके रिलीजियस के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लॉस के साथ मैच नहीं कर रही है। अगर वो लॉस के साथ मैच नहीं कर रही हैं तो फिर वो हमारे हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर वो हमारे लिए क्योंकि इक्वेलिटी नहीं मेंटेन कर पा रही है, इसलिए हम लोग को उनको अडॉप्ट करने से उनको रोकना पड़ेगा या फिर एक तरीके से प्रिवेंट करना पड़ेगा अभी के लिए, ताकि वो हम लोग इक्वली सबको ट्रीट कर पाए। वो आप अपना कल्चर अपने तरह से आपका वो बना रहेगा एक तरीके से। Also, before the law is getting implemented, we should also see the countries where this law is being already previously being implemented, and we should analyze the historical, cultural, social background of these countries also, the demography in terms of religion, culture, gender, all these things also need to be properly analyzed, and we should see whether all these things are getting applicable to our own country, and what are the possibilities of failures, what will be our challenges, what are the advantages, all these things need to be properly addressed like we have discussed. Then we can come into, we should not implement this in a hurriedly or harsh. in a fast manner. We should analyze properly, and should be, this is a very sensitive issue, and all the dimensions should be analyzed properly also. Then only it should be implemented step by step, slowly should be implemented. At the same time, the aim should be as given in the fundamental sorry, the directive principles of state policy. That should be, everyone should be treated as equal. Then only our true aim will be achieved. Okay, I think you can conclude now. Thank you for giving me to conclude our group discussion. Our group discussion is very fruitful. Some people are in favor of the applying of UCC and some are against of the UCC. The women are in favor that saying that it can be equally, that law is equally treated to the people, and that will be beneficiary for the government and courts also to identify the each and individual into equal level, and also it can be give the equal rights to the genders also, different genders also, and solve some cultural problems or different problems from country also. And whoever the against from this law is saying that there is some hurting the people's cultural rights, their religious sentimental, also the freedom of speech can be destroyed from that point also. And at last we are come into the conclusion that this law should be implemented into very after a large discussion and some changes, so that the people of different religions should not be hurt and can be adopted easily. Thank you for giving me a question. Thank you. Okay. So how was it? I'm good. Good? Satisfied with your performance? Okay. Topic कैसा था? अच्छा था Topic मैम। अच्छा था। Okay. ओके, विल स्टार्ट विद राहुल। आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने पहले तो टॉपिक का नाम ही कंप्लीट नहीं बोला। टॉपिक वाज कि शुड यूसीसी बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। आपने से बोला कि विल बी डिस्कसिंग ऑन यूसीसी। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखो, अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो एटलीस्ट मेंशन वंस योर टॉपिक, राइट। सो पहले टॉपिक का नाम मेंशन करो कि टॉपिक है क्या, देन यू नीड टू एक्सप्लेन द टॉपिक। फिर आप एक्सप्लेन करो कि यूसीसी क्या है। ओके, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वो ठीक है। फिर यू नीड टू एक्सप्लेन कि यूसीसी एग्जैक्ट क्या है, मतलब है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो इट इज व्हाट, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल लॉज of people in India regardless of their religion, gender or sexual orientation, right? So you can give a proper definition. फिर आप बोल सकते हो कि it is one of the directive state principles mentioned in our Indian constitution. Okay, ये आपने टॉपिक को बता दिया कि यूसीसी है क्या। फिर आपने बोला कि we will be discussing the pros and cons, वो पार्ट ठीक था, रेस्ट वाज ओके। फिर आते हैं आनंद के पॉइंट्स पे। आनंद, आप
आपके पॉइंट्स अच्छे थे बट आप काफी ज्यादा स्ट्रेच कर जाते हो पॉइंट्स को, राइट। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखो, थोड़ा सा पॉइंट्स को शॉर्ट रखो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पॉइंट्स को, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट रखो। फिर आपके पॉइंट्स अच्छे लगे मुझे आज। आपने हिंदू मैरिज एक्ट की बात करी, मेंटेनेंस की बात करी, जो कि मुस्लिम लॉज में नहीं है। अच्छा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही था, किसी ने क्रिश्चियन लॉज के बारे में नहीं बोला। दो ही कम्युनिटीज थोड़ा ना इंडिया में, है ना। सिर्फ दो कम्युनिटीज को टारगेट मत करो, क्रिश्चियन लॉज भी हैं, उनके भी अपने पर्सनल लॉज हैं। सो यू दैट ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट। फिर आपने बोला, एक स्टेटमेंट आपने दिया कि मुस्लिम लॉज आर अगेंस्ट विमेन, ऐसा आपको लगता है ना। तो ये थोड़ा सेंसिटिव स्टेटमेंट हो गया। आप किसी भी रिलीजन को लेकर ऐसा स्टेटमेंट मत दो कि दिस लॉ इज अगेंस्ट विमेन, ऐसा मत दो। अगर आप थोड़ा यहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हो, राइट, यू कैन यूज सम बेटर वर्ड्स कि वी कैन प्रमोट द जेंडर जस्टिस और वी कैन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी बाय इम्प्लीमेंटिंग द यूसीसी, राइट। ऐसा नेगेटिव कोनोटेशन डोंट यूज कि मुस्लिम लॉज आर अगेंस्ट विमेन, ओके। देन यू टॉक्ड अबाउट कि वो ठीक था कि विमेन आर नॉट अलाउड इनहेरिटेंस, वो ठीक है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया, यू हैव स्पेसिफाइड दैट पॉइंट, बट जनरल स्टेटमेंट देना अबाउट अ कम्युनिटी इज नॉट गुड, ठीक है। देन यू टॉक्ड अबाउट अ वेरी गुड पॉइंट कि इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देन यू टॉक्ड अबाउट कि इट इज मेंशन्ड इन डीपीएसपी। योर वन वेरी गुड पॉइंट वाज कि वी नीड टू डेवलप ट्रस्ट एंड फेथ इन पीपल, right? So that was a good point. Then you talked about ki sudden change won't be appreciated, that is also a good point, ki we need to have a lengthy discussion about this topic, then only we can implement this, because suddenly people also won't accept it. Then you talked about ki vote bank politics ke liye tool nahi hona chahiye, it is a good point. Vasudev Kutumbakam you talked about, okay. You talked about India's history, ki what is India's history, cultural aspect, that is also okay. Okay, so your points were overall good. Next time, my advice would be try to keep it short. Plus, do not criticize some particular community. Okay, keep your statements general, very general. Madam, Yes. regarding inheritance, I think I had talked about the Christian inheritance. That Mary Sorry, Roy, Anand, you're not audible. Please speak loudly. Madam, regarding the inheritance thing, I think I had spoken about the Christian inheritance. Mary Roy, the Arundhati Roy's grandmother. Yes, yes, yes. You talk about that point. So that point I've told you, na, ki specifically about inheritance you had talked. That is okay. But in general, stating a statement ki Muslim laws are against women, I'm talking about that statement. Speak like that. Oh. Yeah, you had spoken like that. Inheritance point was okay because it is a fact, right? But in general, criticizing, I am talking about this particular statement only. The rest your points were good. Inheritance point is good because it is a fact, okay. So we can't deny that. But you have a perception ki Muslim laws are against women. I'm talking about that thing, okay. So are you clear now? Yes, yes. Yes. Rest your points were good. Then we'll come to Bhanu. Bhanu talked about ki equality, women equality point. Bhanu, you repeated. Okay, in last lecture also we had discussed कि अगर कोई point repeat हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात मत करो. Okay, then you talked about the challenges, which was a good part. You started with the challenges कि क्या challenges होंगे implementation में, कि disagreement in thoughts, कि people won't agree, right? Then you talked about a very very important point was tribe का culture, right? कि tribes क्या उनका क्या होगा, फिर उनके बारे में भी we have to think, government have to think कि tribes का क्या होगा, because they have their own set of values and culture, they follow their मतलब they have different sphere, okay. So they are following other customs and religion also. So what about tribes? That point was very good. Then you talked about ki we need to treat everyone equal. Then you talked about one more challenge ki it will hurt religious sentiments. It was a good point, right? Then you can talk about ki communal clash can happen without specifying the communities. You can talk about ki if suppose religious sentiments get hurt, then there might be a possibility of communal clash. जैसे इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, राइट? बेसिक थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ पार्टीशन, थ्योरी ऑफ टू नेशन. दैट वाज बिकॉज ऑफ कम्युनल क्लैशेस. इतना ज्यादा कम्युनलिज्म हो गया था उस टाइम पे कि वी हैड टू सेपरेट.
राइट, विदाउट स्पेसिफाइंग द कम्युनिटीज कि हिंदू मुस्लिम में क्लैश हो जाएगा, वो नहीं बोलना है, कम्युनल क्लैश हो सकता है। ओके, सो दैट वाज इट। देन यू टॉक्ड अबाउट कि वी नीड टू मॉडिफाई द रूल्स। सो अभी तो रूल्स आए ही नहीं है, तो मॉडिफाई किसको करेंगे, है ना? तो ओके, रेस्ट वाज ओके। देन विल कम टू प्रणय। प्रणय, आपने बोला कि जैसे आपने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ मुस्लिम स्टेट, है ना? तो उसका वी कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान। पहली चीज तो ये, पाकिस्तान व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ था, इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ मुस्लिम स्टेट, है ना? तो देयर तो मेजोरिटी लॉज विल गेट फॉलोड ऑटोमेटिकली। बट इंडिया ऑन द अदर हैंड, लोग कह रहे थे कि जब पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर हो गया है तो इंडिया, मतलब यू ऑल्सो डिक्लेयर योरसेल्फ एज हिंदू स्टेट, बट वी डिड नॉट। इंडिया रिमेन सेक्युलर। ओके, सो ऑल रिलीजन्स आर वेलकम्ड हियर। सो पाकिस्तान से कंपेयर करना वोंट बी अ गुड थ्योरी हियर। ओके, देन यू टॉक्ड अबाउट, आई थिंक आप एक पॉइंट बोल रहे थे कि ऑटोनॉमी हो जाएगी एक काइंड ऑफ ग्रुप की। सो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बोलना चाह रहे थे कि दे विल गेट हाँ सप्रेस्ड। मैम, मतलब यस मैम। ओके ओके, सो दैट पॉइंट वाज गुड कि माइनॉरिटी जो राइट्स हैं उनका सप्रेशन होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज दे विल बी नेग्लेक्टेड। ओके, देन यू टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, इक्वालिटी वाला पॉइंट सबने रिपीट किया है। देन यू टॉक्ड अबाउट पॉलीगैमी। पॉलीगैमी को आपने फिर से पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया, फिर आपने बोला कि इन आर कंट्री, लेट्स से कि व्हाट यू टोल्ड कि मोर देन 3 मैरिज इज नॉट परमिटेड। नो आपने मैम, ऐसा बोला मतलब ना? ऐसे में बता रहा था कि ऐसे नहीं मैम, वो नहीं, मतलब पहले होता था ना कि 3 मैरिजेस अलाउड थी, सो मतलब वो मुस्लिम आप तो कंट्री पे आ गए, है ना? बोलने फिर में गलत आपने है। कंपेयर भी पाकिस्तान से किया। सो यू कैन गिव अ जनरल स्टेटमेंट कि पहले पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती थी, वेरी जनरल स्टेटमेंट। ओके, सो वो अगर हम यूसीसी इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ओके, थोड़ा सा मतलब सुंदर तरीके से पॉइंट को कह दिया और पता भी नहीं लगा, राइट? सो दिस वाज अबाउट पॉलीगैमी। देन यू टॉक्ड अबाउट कि ओके, योर वन गुड पॉइंट वाज कि वी शुड इम्प्लीमेंट इट पार्शली। पार्शली को ना कहकर यू कैन से कि वी कैन इम्प्लीमेंट इट एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन सम ऑफ द स्टेट्स। Okay, so let's say कि government has bought the law and the act has been passed. So now what government can do is it can implement it as a pilot project. जैसे बाकी projects government run करती है, एकदम से पूरे country में नहीं करती है। Initially it chooses some places कि यहाँ यहाँ हम implement करते हैं, देखते हैं response कैसा होगा। So that can be done. That can be a welcome move. तो जो अच्छे मतलब अच्छा जो अगर स्टेप लिया जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट में रन करे पहले, देन गवर्नमेंट कैन सी द रिस्पॉन्स, देन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द होल स्टेट, राइट? ओके, देन यू टॉक्ड अबाउट कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे कोहेजन, शेयर्ड एंड कॉमन वैल्यूज, दैट इज गुड। यू कैन ऐड कि नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म बोथ विल बी promoted through this. Okay, the feeling of nationalism. Nationalism क्या होता है? Fraternity, भाईचारा, common feeling of brotherhood. Okay, so that will get promoted eventually through the implementation of UCC. Okay, तो थोड़ा ये words जहाँ whenever you can add, just put on these words कि secularism improve होगा, nationalism enhance होगा. Okay, so you can talk about that. Okay, then you talked about women. Women वाला point again was repeated. Okay, then we'll come to Ravikant. Ravikant, आपने जब when Pranay talked कि इंडिया पाकिस्तान का वो कंपैरिजन करा था, देन यू टॉक्ड कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, व्हिच इज अ गुड पॉइंट, व्हिच शोज कि यू हैव गुड लिसनिंग स्किल्स, कि आपने अच्छे से सुना अटेंटिव होके एंड देन यू क्विकली रिस्पॉन्डेड। ओके, सो वो पॉइंट अच्छा था आपका कि इंडिया तो सेक्युलर है, पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है। फिर आपने बात की कि सती प्रथा थी पहले, बाल विवाह था, तो आप ये कहना चाह रहे थे ना कि पहले कुछ लेट अस से कि रिग्रेसिव लॉज थे एंड हमने उनको अबॉलिश किया एंड अब हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो यू कैन से कि वी नीड रिफॉर्म्स इन द आउटडेटेड लॉज, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आउटडेटेड लॉज हैं विच आर नॉट इन सिंक विद टुडेज जनरेशन डिमांड्स, राइट? सो वी नीड अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो आप कह सकते हो कि वी नीड रिफॉर्म्स इन द आउटडेटेड लॉज। ओके, तो वो रिफॉर्म्स की बात आ जाएगी। फिर आपने बात करी कि गोवा ऑलरेडी हैज दिस, वो अच्छा पॉइंट था। यहाँ पे साथ में यू कैन ऑल्सो मेंशन कि गोवा में इम्प्लीमेंट तो हुआ है लेकिन वहां पे भी चैलेंजेस हैं।
राइट। गोवा में भी चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि यूसीसी इंप्लीमेंट होते ही सब कुछ एक सिमिलर हो गया है। अभी भी वहां पे जो पोर्टुगीज लॉ थे उनके अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं, एंड कुछ जगह जैसे हिंदू में पॉलीगैमी अलाउड है, मुस्लिम का जो शरीयत लॉ है उनको नहीं अलाउड है। तो स्टिल यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद भी वहां पे कुछ पर्सनल लॉज फॉलो करे जाते हैं। एंटायरली यूसीसी तो अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वहां पे। कहने को तो हो गया है कि गोवा हैज इम्प्लीमेंटेड यूसीसी, बट इन प्रैक्टिस एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी सिचुएशंस जो हैं वहां पे गोवा में, तो वहां पे भी यही है कि जो पोर्टुगीज लॉ थे उनके अकॉर्डिंग पर्सनल लॉज में कंप्लीटली अभी फॉलो नहीं हुआ, पार्शियल वेरिएशंस है। जैसे हिंदू में पॉलीगैमी अलाउड है, मुस्लिम में शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर इम्प्लीमेंट हो चुका होता तो ये लॉ नहीं होता फिर, है ना। तो आप वहां पे भी बात कर सकते हो, ये भी एक चैलेंज है कि हमने फॉर एग्जाम्पल गोवा में यूसीसी है, बट स्टिल देर आर ऑन ग्राउंड रियलिटी challenges which are associated with implementation of UCC। ओके, तो उसके बारे में आप उस पॉइंट को एक्सपैंड कर सकते थे। ओके, ये आप बता सकते हो। फिर आपने बात करी मैरिज की, आप मुझे लगता है इंटरकास्ट मैरिज पे पहुंच गए, है ना। तो देखो, बाकी अगर रिलीजन इंटर रिलीजन मैरिज है तो वी हैव स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी, है ना। ऑलरेडी हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है जहां से कि इंटर रिलीजन मैरिज इज पॉसिबल, दे हैव टू रजिस्टर देन इन द कोर्ट। ठीक है, तो इंटरकास्ट मैरिज का उतना रेलेवेंस नहीं था यहाँ पे। ओके, फिर आपने वोट बैंक वाला पॉइंट आप बोलना चाह रहे थे कि ये बेसिकली वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, आप यही पॉइंट कन्वे करना चाह रहे थे। यस मैम। ओके, देन यू टॉक्ड अबाउट ट्रिपल तलाक, व्हाट वाज द पॉइंट। मैम मैं कहने का ये मतलब सोच रहा था कि जैसे एक ट्रिपल तलाक जब बिल पास हुआ था उसका भी बहुत मतलब विरोध किया गया था, तो वो भी मतलब एक तरह तो जो विरोध कर रहे थे वो तो अच्छा नहीं कर रहे थे। अच्छा, पर वो आपका परसेप्शन है ना, कि वो अच्छा कर रहे थे कि नहीं। उनके हिसाब से तो वो ठीक होगा मे बी। तो आप केवल फैक्ट्स पे बात कर सकते हो। ओके मैम। फैक्ट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बस आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग अच्छा नहीं कर रहे थे। वो तो फिर वही बात होगी कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप डीमीन कर रहे हो, है मतलब ना। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था हाँ, मैम। क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये आपका परसेप्शन है कि उन्होंने गलत किया या अच्छा नहीं किया। आप ये बोलो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ओके, क्योंकि वो फैक्ट है, वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, क्योंकि किया था, एक्चुअल में किया था, बिल पास हुआ था और किया था। उसके बाद आप ये स्टेटमेंट मत दो कि वो कर रहे थे नहीं कर रहे थे, वो तो अलग मैटर हो गया, राइट। तो ये चीज आप बोल सकते हो। प्लस ट्रिपल तलाक को अगर कोई काउंटर करता तो वो भी अच्छा पॉइंट बनता। कैसे? क्योंकि ट्रिपल तलाक बेसिकली मुस्लिम्स में ये लॉ था, एंड इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सपोजिटली अगर सेम सिचुएशन किसी हिंदू कपल के बीच में होता है ना, डाइवोर्स लेते हैं, तो क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं है ना। तो फिर हाँ, अब इक्वालिटी कहाँ से आई? तो उसमें मतलब आप बताओ कहाँ से आई फिर इक्वालिटी? अगर मुस्लिम कोई पर्सन है वो डाइवोर्स दे रहा है तो वो तो गलत चीज हो गई। हिंदू अगर कोई है वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देके या बिना बताए ही ऐसे ही चला गया, तो क्या वो चीज गलत मानी जाती है? अगर बिना बताया जाएगा तो गलत तो होगा ही। गलत से मेरा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई जजमेंट नहीं दिया ओके। है ना। तो वो चीज तो इलीगल नहीं है। तो स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी पे आपने लॉ बना दिया कि नहीं ये तो चीज गलत है, और एक पे नहीं बनाया, या तो फिर बराबर इक्वालिटी लाओ। ये वो काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ओके। आप वो समझ? रूल भी तो एक ही कम्युनिटी में है ना मैम, वो मतलब हिंदू में थोड़े ना वैसा रूल है। क्या? तो वही तो मैं चीज बोल रही हूँ। ट्रिपल तलाक वाला। तलाक इज व्हाट? डाइवोर्स है ना बेसिकली। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, तो डाइवोर्स अगर मुस्लिम पर्सन डाइवोर्स लेता है तो वो आपका इलीगल हो गया। उसको आप क्रिमिनल, उसको आप ऐसे प्रेजेंट करते हो कि इट इज अ क्रूएलिटी अगेंस्ट विमेन। सपोज सेम अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वी आर कंसिडरिंग इट एज क्रूएलिटी अगेंस्ट विमेन, सेम ये चीज अगर हिंदू कपल के बीच में हिंदू पर्सन करता है तो क्या उसको क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन माना जाता है? नहीं माना जाता है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ इसका काउंटर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है।
ये जस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट है। अगर आप ट्रिपल तलाक को गलत बता रहे हो, समझ लो कहीं ना कहीं ये आपका भी परसेप्शन है। आप एक बैलेंस्ड व्यू रखो। आपको कभी भी किसी एक कम्युनिटी को ऊपर या एक कम्युनिटी को नीचे नहीं दिखाना है। बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए कि बराबरी, इक्वालिटी हो तो सभी के साथ हो, सभी के बीच में हो। ओके, सो ये यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता था जस्ट कि दिस law is basically unconstitutional or illegal for Muslim, whereas it is not for Hindus. बस आपने उसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। कम्युनल टॉपिक आ गया ना, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं फिर आपका अपना परसेप्शन आ जाएगा वहां पे, वो इंक्लूड नहीं करना। ओके, फैक्ट्स पे बात करो। कम्युनिटी को, किसी को भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, राइट? तो ओके ये, मैम। हाँ जी, तो ये थे आपके पॉइंट्स। फिर कंक्लूजन में आपने बोला, कंक्लूजन भानु ने किया था, भानु ने बोला कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट। कैसे? Ma'am, I'm saying that it is beneficial for a law making community, law making तो for देन law यू कैन making. से कि जो जुडिशरी का प्रोसेस है, तो उसके लिए ये होना हो सकता है बेटर, राइट? Yes. और उसके लिए भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जुडिशरी का पॉइंट, क्योंकि अगर अभी कोई पर्सनल लॉ से रिलेटेड कोई केस जाता है तो जुडिशरी क्या करती है, वो सभी के पर्सनल लॉ से उनको गो थ्रू करना पड़ता है, तो उनके लिए तो Yes. कॉम्प्लेक्स चीज हो गई। अब अगर सेम ही लॉज होंगे तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटरप्रेट करने में। दैट पॉइंट यू कैन ऐड कि राइट नाउ कोर्ट्स क्या करते हैं, अगर कोई पर्सनल मैटर है तो उसे पर्सनल लॉ से ही रिलेट करके स्टडी करते हैं। अगर यूसीसी होगा तो सेम सेट ऑफ लॉज होंगे, मतलब कोर्ट को इंटरप्रिटेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। दैट पॉइंट यू कैन से, ठीक है? तो ये थोड़ा लीगल एस्पेक्ट से पॉइंट ऐड हो जाता है। फिर आपने बोला कि सम पीपल आर सेइंग दिस, सम पीपल, रेदर देन सेइंग कि सम पीपल, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दो बस। ओके, आप ये मत स्पेसिफाई करो कि दोज हु आर इन फेवर दे से दिस, दोज हु आर अगेंस्ट, ऐसा मत स्पेसिफाई करो। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दे दो कि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो दिस नेशनलिज्म बढ़ेगा, कॉमन वैल्यूज प्रॉस्पर होंगी, जेंडर को जस्टिस मिलेगा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी। ट्राई टू यूज दिस पॉइंट्स, वर्ड्स यूज करो बस, जेंडर जस्टिस, और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? ये प्रमोट होगा, शेयर्ड वैल्यूज, हार्मनी आएगी। एंड अगर वी हैव आल्सो सम चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं देयर राइट्स को हैम्पर होंगे, एंड प्लस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे रिलीजियस। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते थे कि पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट, राइट? कि इसमें बीच में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, पॉलिटिकल विल इज नीडेड। प्लस यू कैन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक हर टॉपिक में वैलिड होगा अगर ऐसा कोई आता है तो, कि वी नीड अवेयरनेस, वी नीड कि लोगों को पता हो। ओके, सो अवेयरनेस वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड अमंग द पीपल रिगार्डिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूसीसी। कॉमन मैन शुड नो, राइट? सो दैट पॉइंट कैन बी एडेड कि कॉमन मैन शुड नो कि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो क्या होगा। दैट यू कैन ऐड कि वी नीड सच काइंड ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल। ओके, फिर कंक्लूजन में आपने बोला कि डिबेट्स एंड डिस्कशन होने चाहिए, वो अच्छा पॉइंट है कि वी नीड हेल्दी डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक। प्लस वी नीड कि ऑल द स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व। Government needs to concern each and every stakeholder who is involved in the UCC implementation process. Okay, फिर you can say last में कि this step can be implemented in a what we can say brick by brick approach. ईंट ईंट से घर बनता है, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच होनी चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड कि कुछ बेनिफिट्स बता दिए, कुछ चैलेंजेस बता दिए, और फिर लास्ट में एक वे फॉरवर्ड दे दिया कि ऐसा कर सकते हैं, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज कि कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए कि एक कॉमन ग्राउंड निकल कर आए कि सारे रिलीजन्स में क्या कॉमन है। कॉमन तो है ना चीजें, Yes. रिलीजन भी कॉमन चीजों पे बात करता है, तो वी नीड दोज कॉमन पॉइंट्स, वी नीड दोज गुड कॉमन पॉइंट्स अक्रॉस द रिलीजन्स, है ना? तो एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट जो है लोगों से कंसल्ट करे, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, एंड ब्रिक बाय ब्रिक इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम योर कंक्लूजन। ओके, सो आई थिंक हमने सबके पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, कुछ रह तो नहीं गया?
किसी को कोई डाउट? मैम लैंग्वेज को लेकर मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगा ना उतना? नहीं, लैंग्वेज उतना इशू नहीं है अगर आप पॉइंट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अगर आप खुद कंफ्यूजन में हो, जैसे आप ये जो ट्रिपल तलाक वाला पॉइंट था, फिर आपने वोट बैंक वाला पॉइंट भी आपने क्लैरिटी से एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब डायरेक्ट सीधा सिंपल फैक्ट बोलो। ओके, आप खुद कंफ्यूज अगर साउंड करोगे तो फिर वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। अगर मैम ऐसा होगा सारे लोग इंग्लिश में बोल रहे थे जैसे मैं हिंदी में बोल रहा था, तो इससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? लैंग्वेज उतना बैरियर नहीं है। देखो, आप ऑलरेडी एक एग्जाम पास करके आए हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो फिक्स्ड है कि आपको आता है उतना टेक्निकल नॉलेज। वो आपका कोई इंग्लिश उधर जज नहीं कर रहे हैं, पर आपको नॉलेज कितनी है, आप कितना कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हो पर आप कॉन्फिडेंट हो और आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, राइट, समझ रहे हो आप? उनको ऐसा नहीं है कि हमें तो मतलब इंग्लिश वाला ही बंदा चाहिए। अगर आप वहां सेलेक्ट भी हो गए, वो बाद में आपको पता है क्या करते हैं, वो लास्ट में प्रमोट हिंदी को ही करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हिंदी को। ऐसा होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में कि जैसे गवर्नमेंट प्रमोट करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिंदी को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जो एक्चुअल लेटर्स लिखे जाते हैं वो भी हिंदी में लिख के जाते हैं। दिस इज अ फैक्ट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश मतलब एकदम खतरनाक इंग्लिश होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पॉइंट्स अच्छे से कन्वे करो, इफेक्टिव अपने पॉइंट्स अच्छे रखो। मतलब उनको चाहिए कि हाँ, मतलब है, बंदा कॉन्फिडेंट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, पॉइंट्स अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, राइट। ओके मैम। लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। थोड़ा अगर आपको लगे कि हाँ एक आध पॉइंट इंग्लिश में बोल दिया, फिर हिंदी में बोलो, कोई इशू नहीं है, मिक्स करके बोलो। ओके, बट कंफ्यूज साउंड मत करना। पॉइंट स्ट्रेट अवे बोलो कि पहले हमारी सोसाइटी रिग्रेसिव थी थोड़ी, कुछ हमारी सोसाइटी में रिग्रेसिव इश्यूज थे, एंड अब हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं, एंड यूसीसी इसमें हमारी मदद करेगा। बस स्टेट सिंपल फॉरवर्ड क्रिस्प पॉइंट। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलो, मैडम, नेक्स्ट टाइम हम G20 पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो भी काफी टाइम से न्यूज पे है। थोड़ा सा आइडिया रखना। और G20 पे से डिस्कशन से मेरा मतलब है कि थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, कि इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस हैं और सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो समडे वी विल डिस्कस अबाउट G20 ऑल्सो। okay, madam. फिर आप Madam, इसमें अगर, यस आनंद, madam, can you kindly share some techniques how to make use of effective communication within smaller words? या Uses? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। जैसे आपने अब बहुत लंबे लंबे आपने सेंटेंसेस बोले, लेट्स से कि विमेन से रिलेटेड, जस्ट यूज टू वर्ड्स कि यूसीसी विल हेल्प टू प्रमोट जेंडर जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी। दैट्स इट। व्हाई नीड टू टॉक अबाउट विमेन सो जेंडर में वी हैव ट्रांसजेंडर्स आल्सो, राइट। तो एक कंप्लीट चीज आ जाएगी। ओके, सो विमेन इज व्हाट, वो एक पर्टिकुलर आपने फिर टारगेट कर दिया। बस सिंपल दो वर्ड्स यूज करो, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस। इफेक्टिव भी है। फिर आप बोलो कि जैसे प्रणय ने बोला था कि शेयर्ड वैल्यूज, कोहेजन, कम्युनिटी वैल्यूज, सो बेटर से कि इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग द नेशनलिज्म। ओके, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा। जस्ट अ वर्ड समिंग अप ऑल योर एंटायर पॉइंट, राइट। फिर फ्यू मोर पॉइंट्स यू कुड हैव एडेड कि ये इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते थे। जैसे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जा सकते थे कि हिंदूज में इनिशियली क्या होता था कि जो जैसे लेट्स से शास्त्र वगैरह होते थे, तो कोई हिंदू पंडित ही होता था जो उनको रीड करके बताता, इंटरप्रेट करता था। मुस्लिम में वी हैड शरीयत लॉज। फिर आए ब्रिटिशर्स, फिर उन्होंने क्या किया, दे बॉट सम कॉमन लॉज, है ना। तो वहां से हमारी हिस्ट्री चेंज होनी शुरू हुई। ओके, फिर आप इंट्रोडक्शन में एक और चीज ऐड कर सकते हो कि अगर आप फैक्ट्स पे बात करना चाहो कि हमारी पॉपुलेशन लेट्स से कि अभी 140 हो गई है, ठीक है। तो अगर वी कैन टॉक कि वन सपोज 110 आर हिंदूज, 20 करोड़ आर लेट्स से मुस्लिम, और जो बाकी की बची पॉपुलेशन है लेट्स से सिख, क्रिश्चियंस एंड अदर कम्युनिटीज। सो इन सच ए डाइवर्स पॉपुलेशन विल इट बी इजी टू इम्प्लीमेंट यूसीसी? क्या सच में इजी होगा? तो आप थोड़ा फैक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो कि yes, you are about
मतलब you know about your country. So अब ये जो डाटा है ये आप कहीं भी इंडिया का कोई टॉपिक आता है कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना, कि हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, राइट। तो ये डाटा आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है या इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड है, वहां भी यूज कर सकते हो। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी तो हर कहीं आएगा। अवेयरनेस वाला पॉइंट भी नॉर्मली हर कहीं आता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करो, है ना। ये पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हैं, राइट। So this is how you can use your words to play with the discussion. Okay, any other doubt? मैम समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स आते नहीं है दिमाग में, तो एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस से आएंगे, वो प्रैक्टिस से आएंगे। अब जैसे आज आपने नोट करा ये जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, ट्राई टू यूज दिस पॉइंट्स इन नेक्स्ट जीडी। कहीं भी विमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, विमेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, जैसे हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट में डिस्कस किया था ना, कौन सा था वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, हाँ, तो उसमें आप यूज कर सकते हो कि ये स्कीम क्या कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। समथिंग रिलेटेड टू वुमेन स्कीम, तो उसमें आप ये पॉइंट्स ऐड कर दो। तो आप जैसे जैसे ये वर्ड्स लिख रहे हो ना, उसके आगे एरिया भी लिख लो कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और ये वर्ड्स प्रैक्टिस के साथ आएंगे आपको। इंडिया का कोई टॉपिक आता है जिसमें आपको लगे कि हाँ कहीं तो रिलेट हो रहा है कि हमें शेयर्ड वैल्यूज को प्रमोट करना है, तो नेशनलिज्म लिख दो वहां पे, राइट। इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हो ये। और ये थोड़ा आपका ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब बंदा हैवी डिस्कशन कर रहा है, राइट। सो दीज पॉइंट्स कैन बी यूज्ड। ओके, एनी अदर डाउट्स? Ma'am, is there an example of any secular country that is practicing UCC right now? कोई सेकुलर कंट्री है ही नहीं इंडिया को छोड़कर। नहीं नहीं, क्यों नहीं है सेक्युलर कंट्रीज? चलो ये तो ठीक है, यू लव योर कंट्री, बट फ्रांस, इंटरनेशनली फ्रांस हैज अडॉप्टेड द यूसीसी, फ्रांस ने इम्प्लीमेंट किया है। आप उसके बारे में भी बात कर सकते थे कि इंस्पायरिंग, लेट्स से इंस्पायरिंग फ्रॉम द ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज, कि वी हैव अ ग्लोबल सक्सेस स्टोरी ऑफ फ्रांस। और इंडिया फ्रांस के कितने अच्छे रिलेशन हैं, देखो अभी 25th ईयर ऑफ डिप्लोमेसी वी आर सेलिब्रेटिंग विद फ्रांस। सो फ्रांस का एग्जाम्पल आप दे सकते थे। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी ये पॉइंट। ओके, सो इंटरनेशनल आप फ्रांस का एग्जाम्पल दे सकते हो, पाकिस्तान का मत देना बस, क्योंकि वो तो मतलब नेगेटिव में ही जाएगा। और वो तो पहले से मतलब इस्लामिक अगर आप कंट्री है। कंपेयर भी करो इंडिया से, तो किसी अच्छी कंट्री से कंपेयर करना है। मैम वो ऐसे होता है कि नेचुरली द अदर हाँ, वो कंट्री विच नेचुरली वी हैव आता है, द बट मोस्ट, हाँ, हाँ मतलब जिसके लेकिन बारे में ट्राई हमको पता करो कि होता है तो अच्छी, वो बात। हाँ वो मैं समझ गई थी आप क्या कहना चाह रहे हो, बट नेक्स्ट टाइम से आप ट्राई करो। ओके, चलो, और कोई डाउट? मैम ये डिस्कशन किस एग्जाम के लिए मतलब हो रहा है, मतलब किसी के लिए भी चलेगा ना? आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मैं तो मैम IOCL के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये डिस्कशन जनरली होता है। ओके मैम। मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, वो जो भी करंट इवेंट्स रहे हैं या जो इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं जिस पे प्रोबेबिलिटी है कि जीडी हो सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं नॉर्मली स्टैटिक पोर्शन नहीं डिस्कस करती हूँ, जो भी करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं अभी। ओके, और ये सारे पॉइंट्स आप दूसरी जगहों में भी यूज कर सकते हो। जहां कहीं रिलीजन का अगर टॉपिक आता है, तो हिंदू मुस्लिम के आपके पास अब इतने सारे पॉइंट्स हो गए, तो ये यूज कर दो वहां पे। ठीक है, तो रिलेट अगर करोगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। ओके, ओके मैम। चलो चलो, तो विल एंड हियर। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.